सत श्री अकाल बच्चों सारिਆਂ ਨੂੰ मैं हरजीत कौर सफलता ਦੇ ਰੁਖ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਾਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 19 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ PSSB ਕਲਰਕ ਦਾ ਪੇਪਰ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਸਿਲੇਬਸ ਚੇਂਜ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਤੇ ਕੁਆਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਕੁਐਸਚਨ ਆਣੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੇ 10 ਤੋਂ 12 ਕੁਐਸਚਨ ਆਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਰੀਜ਼ਨਿੰग ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਗੇ 10 ਤੋਂ 12। ਹਾਂਜੀ ਉਹ 10 ਤੋਂ 12 ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਿਕਸ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਵੱਧਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਮਿਕਸ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੱਲ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ 0.5 0.55 0.65 0.8 ਤੇ ਡੈਸ਼। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੱਸਣਾ ਅੱਗੇ ਕੀ ਆਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇਖਿਆ 0.5 ਤੇ 0.55। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਡੈਸੀਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਦਾ ਬੱਚਾ ਆ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਡੈਸੀਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਸੀਮਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਡੈਸੀਮਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 0.05 0.05। अगला आ गया 0.65 तो 0.55 ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 0.10 ਜੀ। अगला ਕੀਤਾ 0.15 ਤਾਂ अगला ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 0.20। ਹਾਂਜੀ 0.8 ਦੇ ਵਿੱਚ 0.20 ਐਡ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਊਗਾ 8 ਤੇ 2 10 ਜੀ। ਇੱਕ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਆਊਗਾ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਆ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਲਟਰਨੇਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਆ। ਆਲਟਰਨੇਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ 0 ਤੋਂ 3 3 ਤੋਂ 8 8 ਤੋਂ 15 15 ਤੋਂ 24 ਤੇ ਅਗਲਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਵਧਿਆ 3 ਵਧਿਆ 5 ਵਧਿਆ। ਹਾਂਜੀ 8 ਤੇ 15 ਚ 7 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ 24 ਤੇ 15 9 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਅਗਲਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆ 3 3 ਚ 2 ਐਡ ਕੀਤਾ 5 5 ਚ 2 ਐਡ ਕੀਤਾ 7 7 ਚ 2 ਐਡ ਕੀਤਾ 9 ਜੀ। ਹੁਣ 9 + 2 11 ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 24 + 11 ਮਤਲਬ 35। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਆ 2 ਤੋਂ 5 ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ 3 ਐਡ ਹੋ ਰਿਹਾ 5 ਤੋਂ 10 5 ਐਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਫਿਰ 7 ਐਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਫਿਰ 9 ਐਡ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਐਡ ਕਰਨਾ ਸੀ 11 26 + 11 37 ਜੀ। ਕਲੀਅਰ ਜੀ। ਚਲੋ ਜੀ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਆ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੀਪੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਫੋਲੋ ਹੋਏਗੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਨ ਦਾ ਸੀਰੀਜ਼ 2 6 18 54 ਡੈਸ਼ ਦੱਸੋ 8ਵੀਂ ਟਰਮ ਕਿਹੜੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 8ਵੀਂ ਟਰਮ ਪੁੱਛ ਲਈ 7ਵੀਂ ਟਰਮ ਪੁੱਛ ਲਈ 11ਵੀਂ ਟਰਮ ਪੁੱਛ ਲਈ ਆਪਾਂ ਏਪੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੇ ਜੀਪੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਫੋਲੋ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੀਪੀ ਸੀਰੀਜ਼। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ 2 6 18 54 ਡੈਸ਼ ਆ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ 2 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੀਏ 6 ਹੋ ਰਿਹਾ 6 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੀਏ 18 ਹੋ ਰਿਹਾ 18 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੀਏ 54 ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਵੀ 54 × 3 ਆਊਗਾ ਪਰ ਕਿਹੜੀ ਟਰਮ ਆਊਗੀ 5ਵੀਂ ਟਰਮ ਆਊਗੀ ਫਿਰ 6ਵੀਂ ਟਰਮ ਆਊਗੀ। ਐਦਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਤਾਂ 8ਵੀਂ ਟਰਮ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਟਰਮ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੀਪੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਫੋਲੋ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ARN-1। ਹਾਂਜੀ ਏ ਕੀ ਆ ਪਹਿਲਾ ਐਲਫਾਬੈਟ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਕੀ ਆ 2 ਜੀ। ਆਰ ਕੀ ਆ ਆਰ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੌਰੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ। ਆ ਕਿਹਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਹੋ ਰਿਹਾ 3 ਦਾ। ਐਨ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਕੱਢਣੀ ਆ ਟਰਮ ਕਿਹੜੀ ਕੱਢਣੀ ਆ 8ਵੀਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ 2 ਆਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 3 ਐਨ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 8 8 - 1 ਤਾਂ 8 ਚ 1 ਗਿਆ 7 ਜੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਵਾਬ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜੀ। ਕਲੀਅਰ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਟਰਮ ਕੱਢਣੀ ਆ ਆਪਾਂ ਏਪੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੇ ਜੀਪੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਫੋਲੋ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੀਪੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਕਦੋਂ ਫੋਲੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਏਪੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੇਖੋ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਕੋਡਿੰਗ ਡੀਕੋਡਿੰਗ ਦਾ।
हाँ जी अपने पेपर दे विच एक या दो क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग आना ही आना है। हाँ जी हुण जिहड़ा अपना पेपर आ उहदे विच कोडिंग डिकोडिंग सीरीज एनोलॉजी क्लासिफिकेशन नंबर सीरीज आ बहुत ही आना है। ठीक है जी तो चलो इस क्वेश्चन नूं वेखदे हां। क्वेश्चन च कहंदा है मदर दा कोड आ ONHURF। हाँ जी आ दिता होया हुण अपने ऊपर ते नीचे वाले अल्फाबेट बिल्कुल वखरे ने। जदों अपने ऊपर ते नीचे वाले अल्फाबेट वखरे हो जाण तो आपां की पानी है पोजीशन वैल्यू। हाँ जी पोजीशन वैल्यू पाई 13 15 20 8 5 18। हाँ जी इधर पाई 15 14 8 21 18 6 जी। हुण इत्थे आपां देखिया आ सेम लिता इत्थे की करता +1 करता आ सेम लिता इत्थे की करता +1 लिता आ सेम लिता इत्थे की करता +1 लिता जी। ठीक है जी सेकंड ऑल्टरनेट आपां ने की रखना है सेम ते बाकी विच की करना है +1 जी। तो चलो जी आ सवाल कढदे हां। अपने कोल क्वेश्चन की आ आंसर दा कोड कढना है। आंसर दा कोड कढना है हुण n रखना है सेम ए दा अगला अल्फाबेट B NB आ देखो जी अपने तिन्ना च ऑप्शन च आ रहा है सी ऑप्शन एलिमिनेट होगी। अगला जी W ते S19 19 दा अगला की हुंदा है T WT NBWT केड़ी ऑप्शन जी D ऑप्शन जी। आर ई तो अगला की आ जाऊगा FG। ठीक है जी चलो जी अगले सवाल वाल वधदे हां। अगला सवाल की कहंदा है हाँ जी अगले सवाल च कहंदा है हैंड दा कोड आ हैंड दा कोड किया SZMW। हाँ जी मिल्क दा कोड दसो। हुण अपने ऊपर ते नीचे वाले अल्फाबेट्स बिल्कुल वखरे ऊपर ते नीचे वाले अल्फाबेट वखरे ने की करना है पोजीशन वैल्यू पानी है। आ पोजीशन वैल्यू पाती जे आप इनू ध्यान नाल वेखिए तो एक दूजे दे ऑपोजिट लेटर्स ने। ठीक है एक दूजे दे ऑपोजिट लेटर्स किवें हुंदे हैं दो लेटर्स एक दूजे दे ऑपोजिट उदों हुंदे हैं जदों उन्हां दा जोड़ किन्ना बनदा है 27 बनदा है। ठीक है जदों उन्हां दा जोड़ किन्ना बनदा है 27 जी। आ देखो जी 8 ते 19 27 1 ते 26 27 14 ते 13 27 4 ते 23 27। ठीक है इन्हां दा जोड़ की बन रहा है ऑपोजिट जोड़ की बन रहा है 27 जी। तो आपां मिल्क दा ऑपोजिट लेटर कढना है। ठीक है जी आ 13 आ 9 आ 12 आ 11 हुण आ 13 है तो इधर आऊगा 14 की हो जाएगा NG। आ 9 है तो 27 चो 9 गए 18 तो की हो जाऊगा RG। आ 12 है 27 चो 12 गए कितना आ गया 15 OG। आ 11 तो 27 चो 11 गए 16 की आ जाऊगा जी PG NROP। तो केड़ी ऑप्शन आ गई C ऑप्शन जी NROP जी। हुण इनू याद करन दा भी तरीका है ਉਹ याद करन दा तरीका सिखाण लग्या इनू याद कर लो। ठीक है जी अपने कोल 26 अल्फाबेट्स हुंदे ने किन्ने अल्फाबेट्स हुंदे ने 26 26 26 दा अद्धा किन्ना हुंदा है 13 26 दा अद्धा 13। हाँ जी आ लिखे पहला 13 अल्फाबेट्स हुण इहदे थल्ले अगले 13 NOPQRST UVWXYZ आ एक दूजे दे ऑपोजिट लेटर ने। हुण आ ना सोचो कि मैडम ने तुहानू लिखना सिखाता तो पेपर च जाके लिख लांगे नहीं जी बिल्कुल नहीं लिखना नहीं है याद करना है जी। हुण किवें याद करोगे ए दा ऑपोजिट लेटर Z जी A to Z। ठीक है आप याद कर देना A to Z ए दा ऑपोजिट लेटर की हो गया Z जी। बाय 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 ठीक है बाय 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 तो याद करो B दा ऑपोजिट Y जी। C दा ऑपोजिट X क्रैक्स क्रैक्स तो याद कर लो C दा ऑपोजिट की होएगा X क्रैक्स। डोंट वरी हाँ जी डोंट वरी सक्सेस टी च आ गए हो तो पेपर भी क्रैक हो जाऊगा जी डोंट वरी। इवन ई दा V इवन उफ यू दा F उफ रीजनिंग वाली मैडम किन्ना काम दिंदी आ। GT रोड हाँ जी हर पंजाब दे शहर च हुंदी है हर शहर च हुंदी है GT रोड। हाई स्कूल HS या हनी सिंह तो याद कर लो या श्री तो याद कर लो जी। इंडियन रेलवेज जैक द क्वीन PK मूवी
OLX men जी, M ਦਾ NG। हाँ जी दोबारा रिपीट कर रही हाँ, A ਦਾ opposite Z, ठीक है, A ਦਾ opposite Z, A to Z, by B ਦਾ Y, crack C ਦਾ X, don't worry E ਦਾ V, U ਦਾ F, उफ, GT road, high school, Indian railways, Jack ਦਾ queen, PK मूवी, OLX, M ਦਾ opposite NG। क्लियर जी? चलो जी आ देखो जी अगला क्वेश्चन। हाँ जी अगला क्वेश्चन देखो जी, सेम अपना प्रीवियस वाला ऑपोजिट लेटर्स जी। आ देखो क्वेश्चन च कहंदा है कम एट वंस, एदा कोड की दिता होया है XLNV, ZGLMXV। हाँ जी हुण देखो जी आप ऑपोजिट लेटर्स याद कर ले, आ क्वेश्चन वाला ही सौखा हो जाएगा, अपने लिए पोजीशन वैल्यू पाने की लोड़ ही नहीं। आ देखो क्रैक्स, OLX, मैन, इवन, A to Z, GT रोड, OLX, मैन, क्रैक्स, इवन, आ एक दूजे दे की हो गए जी ऑपोजिट लेटर। की दा कोड पूछा जी? ओके दा। O ਦਾ opposite LG, OLX, K ਦਾ opposite PK मूवी, P ਦਾ KG, तो की आंसर आ जाना है LP DG। आ देखो जी आप opposite letters याद किते नहीं तो अपने क्वेश्चन हो गए काफी सौखे जी। आ लो जी अगला क्वेश्चन भी, अगला क्वेश्चन देखो जी, अगला क्वेश्चन की कहता है। हाँ जी अगले क्वेश्चन दे विच अपने कोल क्वेश्चन आ कोडिंग डिकोडिंग। अपने कोल दो क्वेश्चन पूछे हुए ने कोडिंग डिकोडिंग दे। क्वेश्चन च कहंदा है MXY dash ZCI is means good little frog, JMX cos ZCI means girl behaves good, NVG DRS cause means girls make mischief, dash AJPX COSS means little fell girl, little girl fell। हाँ जी इस क्वेश्चन दे विच रिस्पेक्टिवली वर्ड नहीं लिखा, जे अपने क्वेश्चन दे विच लिखिया हुंदा वर्ड रिस्पेक्टिवली ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੋਡ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਦੂਜਾ, ਤੀਜੇ ਦਾ ਤੀਜਾ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਰਡ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਕੋਡ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕੀ ਪੁੱਛਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਫਰੋਕ ਦਾ ਕੋਡ ਕੀ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਫਰੋਕ ਦਾ ਕੋਡ ਲੱਭਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਫਰੋਕ ਦੇਖੋ अपना किहड़ी लाइन च आ रहा है, पहली लाइन च आ रहा है, होर किसी लाइन च नहीं आ रहा। हाँ जी फ्रॉक होर किसी लाइन च नहीं आ रहा जी। हुण आपां फ्रॉक दे नाल वाले दा कोड कड्डांगे, गुड ते लिटल दा। आ देखो जी गुड दा कोड, गुड इहदे विच आ गया। हाँ जी गुड इहदे विच आ गया ते दूजी लाइन विच आ गया, तो गुड दा कोड पहली ते दूजी लाइन विच होएगा। पहली ते दूजी लाइन विच की कॉमन आ ZCI, तो गुड दा कोड की आ जाएगा ZCI। हाँ जी हुण लिटल दा कोड कढना है। आ लिटल देखो पहली लाइन चा ते चौथी लाइन चा, लिटल दा कोड किहड़ी लाइन चा, पहली ते चौथी। हाँ जी इहदे विच देखो की कॉमन आ रहा अपने कोल DAS। तो अपना फ्रॉक दा कोड की बचा जी, फ्रॉक दा कोड बचा MXY, जिहड़ी अपनी ऑप्शन च नहीं है तो अपना ऑप्शन क्या आ गया नन ऑफ दीज जी। क्लियर जी? तो फ्रॉक दा कोड की आ गया MXY, जिहड़ा अपनी ऑप्शन च नहीं है तो आंसर आ गया नन ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दे विच कहंदा है कि आ केड़ी स्टेटमेंट, आ चारा स्टेटमेंट तो केड़ी सुपरफ्लूअस आ। सुपरफ्लूअस मतलब केड़ी आपां नूं नहीं चाहिदी, केड़ी आपां नूं नहीं चाहिदी क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन का आंसर देने लई। ठीक है केड़ी आपां नूं नहीं चाहिदी पिछले क्वेश्चन का आंसर देने लई। हुण देखो पिछले क्वेश्चन का आंसर देने लई आपां नूं A दी भी रिक्वायरमेंट सीगी, आ B दी भी रिक्वायरमेंट सीगी, D दी भी रिक्वायरमेंट सीगी, C तां आपां यूज ही नहीं कीता। C दे विच ना गुड आ रहा, ना लिटल आ रहा, ना फ्रॉक आ रहा, तो C स्टेटमेंट आपां यूज नहीं कीती जी। तो अपने कोल केड़ी सुपरफ्लूअस आ जिहड़ी आपां नूं नहीं चाहिदी, तो की जवाब आ जाऊगा C जी। चलो जी अगले सवाल वाल चलते हैं। अगला सवाल आ डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का। हाँ जी आ डिस्टेंस एंड डायरेक्शन दे उन्हें 4 सवाल पूछे हुए से, इको ही क्वेश्चन सीगा ते 4 सवाल। चलो जी आ ध्यान नाल वेखियो क्वेश्चन। क्वेश्चन च कहंदा है ऑल दी रोड्स ऑफ अ सिटी आर ईदर परपेंडिकुलर और पैरेलल टू वन अनदर। सारियां जिहड़ियां रोड्स ने सिटी दियां या तां परपेंडिकुलर ने या पैरेलल ने। रोड्स आर ऑल स्ट्रेट, A B C D E आर पैरेलल टू वन अनदर। पैरेलल मतलब इदा पैरेलल ने या तो इदा या इदा।
ਅੱਗੇ ਰੋਡ GHIJKLM ਆਰ ਪੈਰਲਰ ਟੂ ਵਨ ਅਨਦਰ, ਆ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪੈਰਲਰ। रोड A is 1 किलोमीटर ईस्ट ऑफ B, आ B बनाया, B दे 1 किलोमीटर ईस्ट ते 1 किलोमीटर ईस्ट ते किहड़ी रोड आ, रोड A, ठीक है। रोड B is हाफ किलोमीटर वेस्ट ऑफ रोड C, ते जिहड़ी B आ ਉਹ C दे आधा किलोमीटर कित्थे आ, वेस्ट ते। हुण देखो अपने कोल आ, इनू थोड़ा जिहा होर खुला कर दिंने आ सीगा B, ठीक है, आ 1 किलोमीटर आ B ते A दे विच। ਹੁਣ ਆ ਸੀ ਬਣਾਤੀ, ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਰੋਡ ਬੀ ਆ ਉਹ ਸੀ ਦੇ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵੈਸਟ ਤੇ ਆ, ਸੀ ਦੇ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵੈਸਟ ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਸੀ ਤੇ ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਸੀ ਤੇ ਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਬੀ ਆ ਗਈ, ਆ ਏ ਆ ਗਈ, ਆ ਪੈਰਲਰ ਨੇ, मतलब ਆ रोड बी रोड ए, इस तरह होगी जी। ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਰੋਡ ਡੀ ਇਜ਼ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵੈਸਟ ਆਫ ਈ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਏ ਬੀ ਸੀ ਡੀ ਈ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਪੈਰਲਲ ਨੇ, ਹੁਣ ਡੀ ਕਿੱਥੇ ਆ, 1 ਕਿਲੋ ਈ ਦੇ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵੈਸਟ ਤੇ ਆ ਈ ਬਣਾਈ, ਈ ਦੇ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵੈਸਟ ਤੇ ਕੌਣ ਆ, ਡੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਪੈਰਲਲ ਰੋਡਸ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਉੱਪਰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਬਣਾਤੀਆਂ, ਹਜੇ ਮੈਨੂੰ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਡੀ ਈ ਦਾ ਬੀ ਏ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੱਖਰੀ ਬਣਾਤੀ ਜੀ। अगली लाइन पढ़ते आ हो गया 3 लाइना। रोड जी इज हाफ किलोमीटर साउथ ऑफ एच। हाँ जी एच बनाया, एच दे साउथ विच, साउथ की होंदा थले, एच दे साउथ विच की आ जी आ आधा किलोमीटर, आ भी बन गई। हुण रोड आई इज 1 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ जे, हुण आपां नूं पता नहीं हाले। अगे उन्हें की किया रोड के इज हाफ किलोमीटर नॉर्थ ऑफ एल, नहीं पता। रोड के इज 1 किलोमीटर साउथ ऑफ एम जी, आ नहीं पता, इनू वखरा रहन देने, इत्थों बनाने आ। रोड के कित्थे आ, एम दे 1 किलोमीटर साउथ ते, एम दा 1 किलोमीटर साउथ, आ साउथ आ गया, आ कौन आ गई, के आ गई, ते के कित्थे आ, अद्धा किलोमीटर नॉर्थ ऑफ एल। के कित्थे आ, एल दे अद्धा किलोमीटर नॉर्थ ते, ते एल इधर आ गया, के कित्थे आ, एल दे उत्ते। आई इज 1 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ जे, आई कित्थे आ, जे दे नॉर्थ ते। हुण अपने कोल इत्थे भी नहीं पता, इत्थे नॉर्थ च लिखता, जे दे नॉर्थ ते आ गई 1 आई, किन्ने किलोमीटर, आई जी। आप वखरी वखरी बनाती क्योंकि इन्हां च कोई लिंक नहीं दिता होया जी। चलो जी आपां सवाल पढ़दे आ। सवाल च कहंदा है केड़ा सही आ, विच इज नैसेसरली ट्रू, केड़ा बिल्कुल सही आ। ई ते बी इंटरसैक्ट करदे ने, हुण ई ते बी तां रले ही नहीं होए, इंटरसैक्ट दी तां गल ही नहीं आ। डी इज 2 किलोमीटर वैस्ट ऑफ बी, डी बी दे 2 किलोमीटर वैस्ट आ भी लिंक नहीं दिता होया, आ भी नहीं हो सकता। डी इज एटलीस्ट 2 किलोमीटर वैस्ट ऑफ ए, हाँ जी एटलीस्ट आ भी नहीं दिता होया, लिंक नहीं किया होया। एम इज 1.5 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ एल जी, एम कित्थे आ, 1.5 किलोमीटर एल दे नॉर्थ। हुण एम ते एल आ कन्फर्म आ, एम कित्थे आ, 1 किलोमीटर ते अद्धा किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर नॉर्थ ते आ एल दे, बिल्कुल सही जी। तो केड़ा जवाब आ जाऊगा, डी ऑप्शन जी। चलो जी एक क्वेश्चन हो गया अपना, अगला क्वेश्चन ते तुरदे आ। अगले क्वेश्चन च कहंदा है जे ई बी ते सी दे विचकार होवे, जे ई बी ते सी दे विचकार होवे तां केड़ा फॉल्स आ। हुण आपां ने ई नूं कित्थे बनाना है, बी ते सी दे विचकार। आ देखो बी ते सी दे विचकार आ गया ई, आ पहले ही अद्धा सीगा मतलब 0.5 सीगा, आ 0.25, आ 0.25, ठीक है। आ ई आ गया तो डी कित्थे आ, ई दे 1 किलोमीटर, आ 0.75 आ गया डी, ठीक है। आ 0.25 तो इधर आ गया 0.75। हुण आपां नूं दसना है केड़ा गलत आ, तो पहला पढ़दे आ। डी इज 2 किलोमीटर वैस्ट ऑफ ए, डी कित्थे आ, ए दे 2 किलोमीटर वैस्ट ते, डी कित्थे आ, ए दे 2 किलोमीटर वैस्ट ते। हुण देखो अपना जे आपां इहनूं जोड़ीए, आ अद्धा 1 किलोमीटर, 1.75, डी कित्थे आ, 1.75 ऑफ ए, ठीक है। 1.75 आ गई, कहंदा है 2 किलोमीटर, आ तां बिल्कुल गलत हो गया जी। तो आपां नूं आही पुछिया सी केड़ा गलत आ, ते केड़ा गलत आ, पहली ऑप्शन जी, अगे जाण दी लोड़ ही नहीं। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन च की कहंदा है, अगले क्वेश्चन च कहंदा है जे रोड ई बी ते सी दे विचकार आ तां दसो ए ते डी दा डिस्टेंस कितना होएगा।
ਹੁਣ ਰੋਡ E B ਤੇ C ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਰੋਡ E ਬਣਾਤੀ B ਤੇ C ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਤਾਂ D ਤੇ A ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ D ਤੇ A ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਪਾਂ ਕੱਢਿਆ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਸੀ 1.75 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆ 75 ਤਾਂ 1.75 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਨੇ ਆ आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर आ नहीं आ की आ गया जी 1.5 तो 2 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ जी। क्लियर जी ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲੱਗਦੇ ਆ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ। ਅਗਲਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਂਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਹੜੀ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਰੋਡਸ ਕੋਇਨਸਾਈਡ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਦੋ ਰੋਡਸ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕੋਇਨਸਾਈਡ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਣ ਗਿਆ। L is ਅੱਧਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਾਰਥ ਆਫ I, L is ਅੱਧਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਾਰਥ ਆਫ I ਦੇ ਨਾਰਥ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ I ਦੇ ਨਾਰਥ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ L। ਹਾਂਜੀ L ਕਿੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਾਰਥ ਆਫ I ਆ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆਪਣਾ ਕੋਇਨਸਾਈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਇਨਸਾਈਡ मतलब ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਅਗਲੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ J is ਹਾਫ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਾਰਥ ਆਫ K, J is हाफ किलोमीटर नॉर्थ ऑफ K। आ सी K आ J बनाता हाफ किलोमीटर नॉर्थ, आ हाफ किलोमीटर हो गया, आ भी हाफ किलोमीटर नॉर्थ हो गया, तो J हाफ किलोमीटर हो गया नॉर्थ ऑफ K। ठीक है तो J आ गया, तो J तो आप I बनाना है, J तो I का डिफरेंस कितना है 1 किलोमीटर का, तो J तो I आ गया जी। ठीक है 1 किलोमीटर का आधा हो गया, आधा होर आ गया। आ देखो जी ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਇਨਸਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉੱਪਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਆ ਕੋਇਨਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਦੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਗਿਆ K ਤੇ M ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਰੋਡਸ ਕੋਇਨਸਾਈਡ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਬਿਠਾਤਾ ਤੇ I ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, तो J किदे विच आ गया M ते K दे विच ते I होर ऊपर, आ अपना ऊपर ही जा रहा है। ठीक है जी तो अपना जवाब किया जाऊगा सेकंड ऑप्शन जी। क्लियर जी तो अपना आंसर बी ऑप्शन आ गया, आगे जाने की लोड़ ही नहीं। चलो जी अगले सवाल वाल वधदे आ। अगला सवाल की कहता है, हाँ जी अगले सवाल च पुछदा है केड़ा what is the product of the numbers which belong to two figures only। प्रोडक्ट करो उन्हां नंबरां दा ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਫਿਗਰਾਂ ਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਓਨਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਦੋ ਫਿਗਰਸ ਚ ਆਣ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਟੂ ਫਿਗਰਸ ਆ ਤਾਂ ਸਿੰਗਲ ਫਿਗਰ ਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਆ ਵੀ ਸਿੰਗਲ ਫਿਗਰ, ਆ ਵੀ ਸਿੰਗਲ ਫਿਗਰ, ਆ ਵੀ ਸਿੰਗਲ ਫਿਗਰ, ਆ ਵੀ ਸਿੰਗਲ ਫਿਗਰ। ਹੁਣ ਆ 6 ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆ 6 ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਚ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਓਵਲ ਚ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਏਦਾਂ ਹੀ 4 ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਕੁਆਇਰ ਚ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਓਵਲ ਚ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ 2 ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆ 2 ਓਵਲ ਚ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਕੁਆਇਰ ਚ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਆ 3 ਦੇਖੋ जी आ 3 अपना 3 फिगर्स आ रहा है। ठीक है ट्राइंगल ओवल ते स्क्वायर तो 3 नूं नहीं लेना जी। 9 भी अपना 3 फिगर्स आ रहा है। 8 देखो जी 8 अपना इस फिगर च आ रहा है ते ओवल च आ रहा है। होर देखो जी 6 हो गया 7 बस आही आएंगे तो इनू गुणा करो 6 4 जा 24, 24 इंटू 2 48, 48 इंटू 8 जी, 8 8 जा 64, 8 4 जा 32, 384 जी। तो की जवाब आ जाऊगा सी ऑप्शन जी। चलो जी अगले सवाल वाल वधदे आ। अगला सवाल की कहता है, हाँ जी अगला सवाल आ अपने को एक वर्ड देता वंडरफुल। क्वेश्चन च कह रहा है द पोजीशन ऑफ हाउ मेनी लेटर्स of the word wonderful will remain unchanged। मतलब ਇਹਦੇ ਚ ਕਿੰਨੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਅਲਫਾਬੈਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੀ ਆਣਗੇ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਫਾਬੈਟਿਕਲੀ ਲਗਾਤਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਫਾਬੈਟਿਕਲੀ ਲਗਾਤਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹੜੇ ਅਲਫਾਬੈਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਣਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਲਿਊ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆਊਗਾ D ਆਊਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ E ਆਊਗਾ, ਫਿਰ F ਆਊਗਾ। हाँ जी उस तो बाद D E F, फिर क्या होगा 12 जी L तो बाद N जी, फिर O जी, फिर उस तो बाद 18 21 W। हाँ जी किन्ने के अल्फाबेट्स ने जेडे अपनी था ते ने आ चेंज हो गया, 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 U सेम आ तो किन्ने अल्फाबेट्स ने ओनली 1 जी। एक अल्फाबेट आ जेड़ा अपनी था ते आ की आंसर आऊगा 1 जी।
चलो जी अगले सवाल वाल वादे आ। अगला सवाल आ रैंकिंग दा। क्वेश्चन च कहंदा है रोहन रैंक 7th फ्रॉम द टॉप। रोहन दा रैंक 7th आ टॉप तो, यानी कि रोहन उपरों 7वें नंबर ते आ ते रोहन ही 26वें नंबर आ बॉटम तो। जे आप थल्ले तो काउंट करिए, ठीक है, नीचे तो काउंट करिए, तो अपना रोहन किन्ने नंबर ते आ गया? 26 नंबर ते, ठीक है जी। अगे पिछे तो रैंक दिता होया है। आप कई बार कह देंगे मैम मैं क्लास च 7th आया, मैं कहा वेरी गुड। तो दूजा बच्चा कहता मैडम मैं भी 7th आया, पर पिछे तो आ रैंक आपू अगे तो भी दे सकता है, पिछे तो भी दे सकता है जी। तो क्वेश्चन च पूछदा है टोटल बच्चे किन्ने ने क्लास? हाँ जी टोटल बच्चे आ देखो जी ਇਹਦਾ तरीका 7 बच्चे 7वें रैंक च रोहन, ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ किन्ने बच्चे ने? 6। रोहन 7वें रैंक ते आ ते ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ किन्ने बच्चे ने? 6। आ रोहन 26वें बॉटम ते आ तो नीचे किन्ने बच्चे हो गए? 25। आ 1 2 3 4 5 6 25 आए तो 26वां नंबर आ गया। टोटल बच्चे किन्ने ने? अच्छे प्लस 1 रोहन प्लस 25, हाँ जी 7 प्लस 25, तो 7 प्लस 25 करांगे 25 प्लस 5 30 ते 2 32, हाँ जी टोटल बच्चे किन्ने ने? 32 जी, ठीक है जी। या तो आप इस तरह कर सकते हैं, या दूजा तरीका इक्को बच्चे का रैंक अगे ते पिछे तो दिता होया है, इक्को बच्चे का रैंक अगे पिछे दिता होया, आपां की करना है? दोनों का जोड़, दोनों नू जोड़ करो ते -1 कर दो। तो दोनों नू जोड़ किया तो -1, आ -1 क्यों किया? क्योंकि रोहन 2 बारी काउंट हो गया, रोहन 2 बारी काउंट हो गया, एक बारी की कर देना जी? माइनस। आ लो जी अगला सवाल भी रैंकिंग दा की कहंदा क्वेश्चन च पढ़दे आ। 40 कुड़ियां दी रोआ, 40 कुड़ियां दी रोआ when Komal was shifted to her left by 4 places, her number from left end of the row became 10th। आ बन गई अपने कोल की नाम आ? कोमल। उन्हें कहा जदों असी कोमल नू 4 प्लेसिस लैफ्ट शिफ्ट किया तो कोमल का रैंक कितना आ गया? 10th लैफ्ट। हुण देखो आ शिफ्टिंग तो बाद आ तो कोमल का ओरिजिनल रैंक ही होएगा। जे वो लैफ्ट शिफ्ट हुई है तो आपको ओरिजिनल कड्ढण लई उहनूं राइट शिफ्ट करना पेगा, ठीक है। जो आप कुछ ज्यादा प्लस करता तो बैलेंस बनाने लिए आप की करते हैं? माइनस करते हैं। हुण उन्हें लैफ्ट शिफ्ट किया तो आपको वापस जाने लिए उन्होंने की करना पेगा? राइट शिफ्ट करना पेगा जी। आ कोमल का न्यू रैंक आऊगा, आ न्यू रैंक 11 12 13 14 लैफ्ट जी, ठीक है। पहला कोमल 14 लैफ्ट से सीगी और 4 लैफ्ट पोजीशन शिफ्ट हुई, 1 2 3 4, ठीक है जी। अगे बढ़ते अगे कहता उन्हें कहा स्वाति दसो राइट एंड तो की आएगा रैंक जे स्वाति कोमल दे किथे आ? 3 प्लेसिस राइट ऑफ कोमल्स ओरिजिनल पोजीशन, ठीक है। आ कोमल दी ओरिजिनल पोजीशन आ ते स्वाति किथे आ? 3 पोजीशन राइट ते आ, तो राइट इधर आऊगा। हुण इहदा ओरिजिनल पोजीशन तो राइट 15 16 17 राइट, तो स्वाति किन्ने नंबर ते आ गई? 17 लैफ्ट ते, 3 पोजीशन राइट ते 15 16 17 लैफ्ट। हुण स्वाति का रैंक लैफ्ट तो आ गया, आपां स्वाति का रैंक किधरों कड्ढना है? राइट तो जी, हाँ जी। हुण अपने कोल एक साइड तो रैंक दिता होया है, दूजी साइड तो कड्ढना है, दूजी साइड तो कड्ढना है तो की फार्मूला हुंदा है जी? टोटल बच्चे +1 माइनस लैफ्ट हैंड साइड। हुण आपां ने स्वाति का राइट हैंड साइड तो रैंक कड्ढना है तो आपां माइनस की करांगे? स्वाति का लैफ्ट तो रैंक, स्वाति का लैफ्ट तो रैंक, हाँ जी। टोटल न्याणे किन्ने ने? 40, 40 च एक ऐड किया 41, 41 चो की माइनस करना जी? 17, हाँ जी 41 चो 17 माइनस करो जी। जे आप 40 चो 17 माइनस कर दिया 23 जी, तो स्वाति का रैंक कितना आ जाऊगा? 24, ठीक है। स्वाति का कितना रैंक आ जाऊगा? 24। 40 चो 17 गए 23, 23 च एक ऐड कर दो जी 24, तो स्वाति का रैंक आऊगा 24। ऑप्शन च है नहीं तो की जवाब आ गया? नन ऑफ दीज जी। चलो जी अगला सवाल फेस डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का। हाँ जी 2 क्वेश्चन ने। शालू 10 किलोमीटर गई साउथ अपने घरों, हाँ जी आपका घर आ गया तो शालू साउथ गई 10 किलोमीटर, फिर उन्हें की टर्न लिता? लैफ्ट टर्न लिता ते 25 किलोमीटर गई। हुण शालू एवें जा रही है, एवें जा रही है, आ हो गया राइट टर्न, आ हो गया लैफ्ट टर्न। हुण शालू ने लैफ्ट टर्न लिता 25 किलोमीटर आ गई, फिर उन्हें लैफ्ट टर्न लिता ते 40 किलोमीटर गई। हुण इद्दां जा रही सीगी, हुण लैफ्ट टर्न किथे आएगा? ऊपर आएगा, राइट टर्न तो मेरा आ वाला, ठीक है। तो लैफ्ट टर्न उत्ते 40 किलोमीटर, आ 10 सीगा 40 किलोमीटर आ गया।
फिर उन्हें राइट टर्न लिता तो 5 किलोमीटर गई। हुण इधरों राइट टर्न इधर आ गया 5 किलोमीटर आ पहुंच गई। क्वेश्चन च कहता है बैंक च पहुंच गई। हाउ फार इज हर बैंक फ्रॉम हर हाउस, किन्नी दूरी ते आ बैंक ओदे घरों, किन्नी दूरी ते आ कड्ढना जी, आ कड्ढना। आ कड्ढण लई आ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कड्ढण लई आपां नूं की करना पेगा, आ राइट एंगल ट्रायंगल बनाना। आ राइट एंगल ट्रायंगल आ 40 आ 10 हो गया तो आ कितना हो गया जी 30। आ 40 आ 10 आ तो आ कितना हो गया 30 जी। आ पूरा 25 आ ते ए 5 वखरा ही आ तो आ कितना हो गया जी 25। आ कितना हो गया 25 तो अपनी परपेंडिकुलर कितना है 25 ते 5 30, बेस कितना है 30, परपेंडिकुलर भी 30 ते बेस भी 30। तो हाइपोटेन्यूज किवें कड्ढी दी है, की फार्मूला हुंदा है परपेंडिकुलर दी स्क्वायर प्लस बेस दी स्क्वायर। ठीक है, आप स्क्वायर रूट लाता हाइपोटेन्यूज दा। ठीक है, तो अपने कोल की आ गया 30 दी स्क्वायर प्लस 30 दी स्क्वायर। हाँ जी 30 दा स्क्वायर कितना हुंदा है 900, 900 प्लस 900 आ कितना हो गया 1800। 1800 किसे दा स्क्वायर रूट नहीं हुंदा जी, 1800 किसे दा स्क्वायर रूट नहीं हुंदा तो आप इहदा स्क्वायर रूट किवें कड्डांगे। आ लो जी 1800 किता 2 आ गया, 900 आ गया, 2 किता 450 आ गया, आप फिर 2 किता 225 आ गया। हाँ जी हुण 15 कर लो, 15 इंटू 15 225 हुंदा जी, आ गया। हुण अपने कोल 2 ते 5 15 आ गया वापस, यानी कि 30 रूट 2। आंसर की आना है 30 रूट 2। हुण आपां जे ऑप्शन च देखिए 30 रूट 2 तो है नहीं। हुण देखो रूट 2 की वैल्यू कितनी होंदी है, रूट 2 की वैल्यू होंदी है 1.414। ठीक है 1.414 तो 30 नूं 1.414 नाल गुणा कर दो तो अपने कोल मल्टीप्लाई करके 42 किलोमीटर आ जाऊगा जी, 42 किलोमीटर। तो कुछ बच्चे कहते हैं क्वेश्चन दे आंसर ही गलत ने, ऑप्शन ही गलत ने। ठीक है जी, आपने वैल्यूज भी याद करनी है। रूट 2 की 1.414 होंदी है, इधर रूट 3 की कितनी होंदी है 1.7। चलो जी अगला सवाल देखने, अगला सवाल की कहता है इन विच डायरेक्शन इज द बैंक फ्रॉम हर हाउस। हाँ जी बैंक केड़ी डायरेक्शन चा ओदे घरों। हाँ जी बैंक केड़ी डायरेक्शन चा ओदे घरों। हाँ जी आ रहा घर, आ घर किथे सीगा आ रहा, एदा घर आ बैंक आ। हाँ जी केड़ी डायरेक्शन चा नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। हाँ जी बैंक किथे नु आ नॉर्थ ईस्ट विच, किथे नु आ नॉर्थ ईस्ट। तो की ऑप्शन आ जूगी सी जी। चलो जी अगला सवाल देखो जी, अगला सवाल आ गया ब्लड रिलेशनशिप दा। ठीक है फैमिली ट्री दा क्वेश्चन। क्वेश्चन च कहंदा है अमित इज सन ऑफ राहुल। हाँ जी किवें बनाने आ, जदों बच्चे हुंदे आपां थल्ले बना देने आ, पेरेंट्स उत्ते बना देने आ, जिद्दां ही जेंडर पता लगदा आपां प्लस माइनस पा देना। ठीक है सिबलिंग्स भैन भरा सेम जनरेशन, हस्बैंड वाइफ लई इक्वल दा निशान। ठीक है अमित मुंडा है राहुल दा, सारिका राहुल सिस्टर, सारिका कौन है राहुल दी भैन आ बनाती सारिका राहुल दी भैन। हैज अ सन सोनू, एदा एक मुंडा आ सोनू ते एक डॉटर आ रीटा, एदी एक डॉटर आ रीटा आ बन गई। राजा इज मैटरनल अंकल ऑफ सोनू, राजा कौन है मैटरनल अंकल आ सोनू दा, यानी कि राजा ओदा की है मामा आ सारिका दा एक भरा राहुल आ, एक भरा की बना देंगे राजा क्योंकि वो मामा आ सोनू दा। आ बन गया जी, आ देखो जी डायग्राम बन गया। 3 क्वेश्चन ने। आ पहला क्वेश्चन देखो जी 4 क्वेश्चन ने। पहला क्वेश्चन कहता है अमित सोनू दा की लग्या। हाँ जी अमित ते सोनू इको जनरेशन तो आपस च की लगणगे कजन। अमित सोनू दा की लग्या कजन जी। हाउ इज रीटा रिलेटेड टू राजू राजा, रीटा राजा दी की लगी जी, आ रीटा थल्ले आ राजा उत्ते आ, तो रीटा राजा दी की लगी भांजी यानी कि नीस। तो नीस देखो केड़ी ऑप्शन आ सी ऑप्शन जी। हाउ मेनी नेफ्यूज डज राजा हैव, राजा दे किन्ने नेफ्यूज ने, भांजे ने या भतीजे ने। ठीक है नेफ्यूज मतलब भांजे भी ते भतीजे दोनों काउंट करने हैं। जे नीस की गल होए भतीजी ते भांजी दोनों काउंट करनी है। तो नेफ्यूज किन्ने ने अमिता ते एक सोनू आ, तो किन्ने भांजे ने 2, नेफ्यूज मतलब भांजे ते भतीजे दोनों। व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ राजा विद रीटा, राजा रीटा दा की लग्या जी, राजा रीटा दा की लग्या मामा मैटरनल अंकल जी। केड़ी ऑप्शन आ सी ऑप्शन जी। चलो जी ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ अगले सवाल ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਆ। अगला सवाल अपना पजल दा। ठीक है जी
हाँ जी, अपने कोल पजल ਦਾ क्वेश्चन शुरू ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਆਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡੇਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡੇਜ਼ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਲੋਰਸ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫਲੋਰ ਵਾਈਜ਼ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, इस तरह। जे अपने कोल मंथ आ गए तो आप मंथ वाइज शुरू करना है, ठीक है। चलो जी, हुण इस क्वेश्चन विच अपने कोल बंदियां दे नाम आ गए तो बंदियां दे नाम तो शुरू करता। आ गया परमिंदर, आ गया इकबाल, आ गया रमेश, आ गया शुभम, आ गया तिलक जी, ते एक उषा भी आ। हाँ जी, आ तिलक ते आ गई उषा, ठीक है। हाँ जी, अगे की कहता है, आ मास्टर डिग्री प्रोक्योर कर रहे हैं वक्रे वक्रे सबजैक्ट दे विच। 2 ऑफ देम स्टे इन होस्टल ए, 2 स्टे इन होस्टल बी एंड द रिमेनिंग 2 स्टे एट होम। 6 बंदे ने, 2 होस्टल ए च रह रहे हैं, 2 होस्टल बी च रह रहे हैं, 2 अपने घरे रह रहे हैं। उषा ते शुभम स्टे इन होस्टल ए। उषा ते शुभम होस्टल ए दे विच रह रहे हैं, ठीक है, होस्टल या होम। तिलक स्टेज इन होस्टल बी, तिलक किथे रह रहा है, बी होस्टल दे विच। एंड इकबाल स्टेज एट होम, इकबाल होम च रह रहा है। आ बन गए, अगे पढ़ते हैं। रमेश डज नॉट स्टे इन होस्टल बी, रमेश बी च नहीं रह रहा। हुण देखो अपने कोल एक बी रह गया तो एक होम रह गया। हुण इधर बी नहीं आना तो की आऊगा, होम आऊगा। तो बी किथे आ गया, आ। एंड स्टडीज पंजाबी, रमेश की पढ़दा, पंजाबी पढ़दा। तिलक स्टडीज मैथमेटिक्स, तिलक मैथ्स पढ़दा। शुभम स्टडीज फिजिक्स। द स्टूडेंट स्टडीज स्टैटिस्टिक्स एंड हिस्ट्री डू नॉट स्टे इन होस्टल बी, ठीक है। जेड़े बच्चे स्टैटिस्टिक्स पढ़ते ने ते हिस्ट्री पढ़ते ने, वो बी च नहीं आने। हुण बी च अपने कोल स्टैटिस्टिक्स नहीं आना, हिस्ट्री नहीं आना। हुण अपने कोल स्टैटिस्टिक्स हिस्ट्री रह गया तो एक सबजैक्ट होर रह गया बायोटैक्नोलॉजी। हुण इत्थे देखो स्टैटिस्टिक्स भी आना, हिस्ट्री भी नहीं आना, तो इधर की आ गया बायोटैक्नोलॉजी। हुण अपना क्वेश्चन तो हो गया खत्म। तो अपने कोल इत्थे स्टैटिस्टिक्स ते हिस्ट्री बचदा है, तो जिहदी इन्फॉर्मेशन अपने कोल दित्ती नहीं हुई तो आपां इत्थे भी लै लेना स्टैट्स या हिस्ट्री, हिस्ट्री या स्टैट्स, आपां नूं श्योरिटी नहीं है जी। तो पहला क्वेश्चन देखो जी की कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्टूडेंट्स स्टे वन ईच एट होस्टल ए एंड एट अदर होम। 2 बच्चों के नाम दसने, जिहड़ा एक ए च रह रहा है एक होम च रह रहा है। हाँ जी, उषा ते शुभम, उषा ते शुभम दोनों ही ए च रह रहे हैं, आ नहीं हो सकता। शुभम ते रमेश, हाँ जी शुभम ते रमेश बिल्कुल सही, एक होस्टल ए च रह रहा है तो एक होम च रह रहा है जी। अगला सवाल कहता है, विच सब्जेक्ट डज इकबाल स्टडी। हाँ जी, इकबाल केड़ा सब्जेक्ट स्टडी कर रहा है। इकबाल या तो स्टैटिस्टिक्स करूगा या हिस्ट्री, या स्टैटिस्टिक्स या हिस्ट्री। तो की ऑप्शन आ गया जी, सी ऑप्शन जी। अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल च पूछदा है, केड़े 2 बच्चे ने जेड़े होम च रह रहे ने, घरे रह रहे ने। हाँ जी, केड़े 2 बच्चे ने जेड़े घरे रह रहे ने। आ देखो जी, घरे केड़े केड़े रह रहा है, इकबाल रह रहा है तो रमेश रह रहा है। इकबाल ते रमेश, की ऑप्शन आ गया जी, बी ऑप्शन जी। अगला सवाल, चलो जी अगला सवाल अपना आ सिटिंग अरेंजमेंट का। 26 तो 28 3 क्वेश्चन पूछे हुए ने। हाँ जी, कुछ फ्रेंड्स ने जिहड़े बेंच ते बैठे ने, हुण दस्सिया भी नहीं होया किन्ने फ्रेंड्स ने। सुनील इज सिटिंग नेक्स्ट टू सुनीता। सुनील किदे नाल बैठा है, सुनीता दे। हुण इधर भी हो सकता है, लैफ्ट च भी ते राइट च भी। सुनील सुनीता दे लैफ्ट च भी हो सकता है ते राइट च भी हो सकता है। एंड संजय इज नेक्स्ट टू बिंदु, संजय बिंदु दे नेक्स्ट विच आ। नेक्स्ट मतलब नाल, आ लैफ्ट च ते राइट च आ नहीं कुछ पता, इत्थे भी हो सकता है उत्थे भी हो सकता है। सुमित इज ऑन द लैफ्ट एंड ऑफ बेंच। हुण आपां इत्थे बनाए, सानू पता नहीं किन्ने बंदे है, आपां नू क्वेश्चन स्टार्ट करता, सुमित किथे आ, लैफ्ट एंड ऑफ द बेंच। आ सुमित बनाता। संजय इज ऑन सेकंड पोजीशन फ्रॉम राइट, संजय राइट तो सेकंड पोजीशन ते आ। सुनील इज ऑन द राइट साइड ऑफ सुनीता, सुनील किथे है, सुनीता दे राइट ते। तो सुनीता दे राइट ते मतलब इदा आ बनणगे। एंड
एंड टू द राइट साइड ऑफ सुमित अपने को एंड वर्ड आ गया ਜਦੋਂ ਐਂਡ ਵਰਡ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੀ ਸੁਨੀਲ ਸੁਨੀਤਾ ਦੇ ਰਾਈਟ ਤੇ ਆ ਤੇ ਸੁਮਿਤ ਦੇ ਵੀ ਰਾਈਟ ਤੇ ਆ ਸੁਨੀਲ ਇਜ਼ ਔਨ ਦੀ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਆਫ ਸੁਨੀਤਾ ਐਂਡ ਟੂ ਦੀ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਆਫ ਸੁਮਿਤ ਸੁਨੀਲ ਐਂਡ ਸੰਜੇ ਆਰ ਸਿਟਿੰਗ ਟੁਗੇਦਰ ਸੁਨੀਲ ਤੇ ਸੰਜੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ आ देखो जी अपने कोल सुनीता आ गया सुनील हुण आपां नूं क्या सुनील ते संजय नाल नाल ने तां आ गया संजय संजय दे नाल कौन आ गया बिंदु संजय दे नाल कौन आ गया बिंदु हुण देखो अपने कोल चार बंदे इकट्ठे बिठाने तां अपने कोल चार बंदे आ गए एक इत्थे कुछ मिस इनफॉर्मेशन हुई है क्योंकि आ दोनों दे राइट साइड ते नहीं आ सकता सुनील सुनील सुनीता दे भी राइट ते सुनील सुमित दे भी राइट ते नहीं हो सकता हुण आपां इहदे बंदियां दे नां चों बंदे काउंट कर लैंदे आ किहड़े किहड़े आ 1 2 3 सुमित चौथा सुनील पंजवा बिंदु पंजवी अपने कोल बिंदु यानी कि 5 ने आ सुमित आ गया ठीक है तो अपने को इकट्ठे आ गए सुनीता सुनील संजय आ गई बिंदु ठीक है तो अपने को 1 2 3 4 5 बंदे ने ठीक है जी तो अपने क्वेश्चन आ हुई सिटिंग एट द सेंटर हाँ जी ऑब्वियस है ऑड पर्सन होंगे ताई क्वेश्चन पूछे सेंटर किन्ने आ सेंटर ते कौन आ तो सेंटर ते कौन है अपने को सुनील ठीक है आ सीगी सुनीता तो सेंटर ते कौन है अपने को सुनील अगला क्वेश्चन देखते हैं संजय इज सिटिंग बिटवीन संजय किदे विचकार बैठा है हाँ जी आ रहा संजय संजय किदे विचकार बैठा है सुनील ते बिंदु दे विचकार संजय किदे विचकार है सुनील ते बिंदु दे विचकार आ देखो जी आपां नूं संजय पहले ही गया सी सेकंड फ्रॉम राइट आ संजय ठीक है ते सुनील दे बिल्कुल नाल आ चलो जी तो की आंसर आ गया बिंदु एंड की सीगा संजय बिंदु एंड सुनील तो बिंदु एंड सुनील केड़ा ऑप्शन आ देखिए बिंदु एंड सुनील डी ऑप्शन जी चलो जी आ हो गए अपने सिटिंग अरेंजमेंट दे क्वेश्चन तो 2 क्वेश्चन रह गए होर आ लो जी 29th क्वेश्चन जे अज वीरवार आ तो 59 डेज बाद दसो की होगा हाँ जी कैलेंडर दे विच तुहानूं मैं दस्सिया सीगा पूरा कॉन्सैप्ट करवाया 2 दिन ला के आ 59 डेज इहदे विच की कढना है ऑड डेज हाँ जी ऑड डेज किवें फाइंड आउट करदे आ 7 नाल डिवाइड करके इहनूं 7 नाल डिवाइड कीता आपां ने 7 7s are 49 7 8s are 56 7 8s are 56 तो अपने कोल किन्ने ऑड डेज आ गए 3 इहदा मतलब किया 8 वीक्स प्रॉपर प्लस 3 ऑड डेज 8 वीक्स प्रॉपर प्लस 3 ऑड डेज हुण आपां जवाब किवें देना जे अज वीरवार आ तां 8 हफ्तिਆਂ ਦੇ बाद भी की होएगा वीरवार क्योंकि अज वीरवार 1 हफ्ते बाद फिर वीरवार फिर 1 हफ्ते बाद फिर वीरवार फिर 1 हफ्ते बाद फिर वीरवार तो 8 हफ्ते के बाद भी की होएगा वीरवार तो बाद 3 दिन वधा दो फ्राइडे सैटरडे संडे हाँ जी तीसरा दिन ठीक है जी तो की जवाब आ जाऊगा संडे ए ऑप्शन जी चलो जी इस दे नाल आपां लास्ट सवाल वाल वधदे आ लास्ट सवाल हाँ जी क्वेश्चन च पुछदा है इन्हां चों केड़ा लीप ईयर आ हुण जदों मैं तुहानूं कॉन्सैप्ट करवाया कैलेंडर दा उहदे विच तुहानूं दस्सिया लीप ईयर कदों आंदा है आफ्टर 4 ईयर्स लीप ईयर कदों आंदा है आफ्टर 4 ईयर्स पर जदों सेंचुरी होंदी है तो सेंचुरी हर सेंचुरी लीप ईयर नहीं होंदी तो लीप ईयर कदों आएगा 8 साल बाद हुण जदों पिछे 00 आ गए या 3 0 आ गए हुण इत्थे पिछे की आ रहा है 00 आ रहा है तो आपां 4 नाल डिवाइड नहीं करना आपां की करना है 400 नाल डिवाइड करना है तो जेड़ा अपना 400 नाल पूरा डिविजिबल आ जेड़ा अपना 400 नाल पूरा डिविजिबल आ ठीक है अपने को रिमाइंडर नहीं बचदा जी ओ अपना लीप ईयर होएगा क्योंकि हर एक सेंचुरी लीप ईयर नहीं होंदी हुण देखो 2800 400 दा पूरा डिविजिबल आ 7 चौके 28 तो अपना जवाब क्या आ जाना है 2800 क्लियर जी ऐदा ही आपां होर क्वेश्चंस तुहाडे नाल सांझे करदे रवांगे प्लीज़ साडी वीडियो नू लाइक करो शेयर करो ते चैनल नू सबसक्राइब करना ना भुल्लियो जी धन्नवाद।